So today we are going to understand what is the difference between innate and adaptive immunity. These are the attributes, and this is about the innate immunity and this is the adaptive immunity. The first is response time. In case of innate immunity जो response time होता है वो मिनट या आवर्स में होता है, while in case of adaptive immunity जो response time होता है वो days में होता है. The next is specificity. Specific for molecules and molecular pattern associated with pathogens and molecules produced by dead and damaged cell. जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है. दे आर स्पेसिफिक फॉर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिकुलर पैटर्न एसोसिएटेड विद पैथोजेंस and the molecules produced by dead and damaged cells. While in case of adaptive immunity, they are highly specific. Discrimination between even minor difference in a molecular structure of microbial or non-microbial molecules. तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है इनकी जो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती है, बेसिकली इनको नॉन स्पेसिफिक हम बोलते हैं. बट जो भी अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है. और अगर उसमें छोटा सा भी माइनर डिफरेंस भी है माइक्रोबियल में या नॉन माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स में तो उन्हें क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. The next is diversity. In case of innate immunity, a limited number of conserved germline encoded receptors are present. ठीक है, इनमें क्या होता है कि limited number पे है. While जो adaptive immunity होती है highly diverse होती है और a very large number of receptor arising from genetic recombination of receptor gene in each individual. तो ये क्या होती है, हाईली डाइवर्स होती है और बहुत लार्ज नंबर में क्या हो सकते हैं, रिसेप्टर जो हो सकते हैं वो अराइज हो सकते हैं फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें होता है of a receptor gene in each individual. The next is memory responses. In case of innate immunity, some observed in invertebrates innate response in mouse, human NK cells. Basically जो memory response होती है, innate immunity में memory response नहीं होती है. कुछ में ऑब्जर्व किया जाता है जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स इनेट रिस्पॉन्स हो गया, माउस एंड ह्यूमन एनके सेल्स में. while in case of adaptive immunity, persistent memory, इनके पास मेमोरी होती है with faster response of greater magnitude and subsequent exposure. तो इनके पास मेमोरी होती है, अगर एक बार कोई बॉडी एंटीजन से एक्सपोज होता है तो बॉडी इससे फाइट करती है और उस एंटीजन के खिलाफ वो मेमोरी जो है वो प्रेजेंट हो जाती है. और अगर वही एंटीजन फिर हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो वो उससे फाइट करता है और फास्टर रिस्पॉन्स होता है. मतलब कि जब पहली बार एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री करेगा और जब दोबारा एंट्री करेगा उनमें जो रिस्पॉन्स करने का टाइम होगा वो डिफरेंस होगा. जब वो दोबारा हमारे बॉडी में एंटीजन एंट्री करेगा तो जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत ही फास्ट होगा. The next is self and non-self discrimination. In case of innate immunity, these are perfect and there is no microbes and specific self-non-self pattern in host. While in case of adaptive immunity, these are very good. Occasional failures of discrimination result in autoimmune disease. तो अगर ये नॉन सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते तो बेसिकली एडॉप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि फेल हो जाने की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो अपना इम्यून सेल्स है वो हमारे सेल्स को एज अ एंटीजन की तरह देखने लगता है और उसके खिलाफ क्या करने लगता है, रिस्पॉन्स शो करने लगता है. The next is soluble component of blood, many antimicrobial peptides, proteins and other mediators. ठीक है, तो जो soluble component of bloods हैं in case of innate immunity, जो हमारे antimicro peptides हैं, proteins हैं और other mediators हैं. while in case of adaptive immunity ये antibodies हैं और cytokinins. तो basically ये response करते हैं और innate immunity में ये peptides, proteins और other mediators जो है वो response करते हैं. जो मेजर सेल टाइप है नेट इम्यूनिटी के वो है फेगोसाइट, दैट इज मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, अदर ल्यूकोसाइट, इपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स. तो ये सारे सेल्स हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी में वर्क करते हैं. व्हाइल इन केस ऑफ एडॉप्टिव इम्यूनिटी टी सेल्स और बी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो वर्क करते हैं. तो बेसिकली जो रिस्पॉन्स, अगर हम इसको समराइज करें तो जो रिस्पॉन्स टाइम है इनेट इम्यूनिटी का कम होता है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं. एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो टाइम लेती है. स्पेसिफिक में देखें तो अडॉप्टिव जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, इनेट जो होता है वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता है. ये स्पेसिफिक होता है फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिकुलर पैटर्न एसोसिएटेड विद द पैथोजेंस. ठीक है, डाइवर्सिटी देखें तो लिमिटेड नंबर है, अडॉप्टिव का डाइवर्स है. मेमोरी रिस्पॉन्स कुछ में ही इनेट इम्यूनिटी में शो करता है जबकि अडॉप्टिव में क्या होता है, हाईली डाइवर्स होता है. सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन इसमें परफेक्ट होता है, इनेट में, अडॉप्टिव में गुड होता है. और अगर फेलियर हो जाता है तो ऑटोइम्यून डिजीज कॉज करता है. ठीक है, सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ ब्लड ये हमारे हो गए और अडॉप्टिव में हमारे एंटीबॉडीज और साइटोकाइन
साइटोकाइंस हो गए। मेजर सेल टाइप फेगोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। while in case of adaptive immunity it is T cells, B cells, antigen presenting cells. So this is the major difference between innate immunity and adaptive immunity. Thank you.